very important to all of us. Today's topic is very important to all of us as importance of sports fitness in one's life is invaluable. Sports is one of the best way to expand a individual's potential. Playing sports inculcates team spirits, develop strategies, critical thinking, goal settings, and many. A fit and healthy individual leads to equally healthy society and strong nation. Indian government has introduced different programs to revive our sports culture at grassroots level by building strong framework for all. As we all know the importance of sport. Along with that, it is also important that we during the play or during the sports, either at a school level or at the uh, game level, we have to prevent it injury also, so that we all can play freely and enjoy the sports. So now I would request our resource person P बालाकृष्ण सर कि सर आप आए और आगे अपने अपनी कंटिन्यू कीजिए. Hello, हाँ जी सर. hello. Am I audible? हाँ जी सर, you are Okay. Thank you. Myself, Dr. P. Balakishore, physiotherapist, HOD, Department of Physiotherapy, some Ultimate Medicare. Thank you, CRC Lucknow, to giving me an opportunity to deliver a lecture on importance of sports, fitness, and injury prevention in school-going children. Okay. Shall I start my program? Please share the yeah, slides. sure sir. And please share the slide. Just give me a second. I'll just share the slides. Okay. Yes. Next slide, ma'am. Yeah. I'm starting it. Okay. Why sports is more important in your child education? Nowadays, the session should be in both English and Hindi, as per your request, ma'am. Okay. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Yes. Nowadays, the kids are more enhanced to TikTok, YouTubes, and Netflix. At least
They are doing their text messages always in sitting posture and avoiding the outdoor games. Okay, there it means that most of the kids are having indoor games or due to pandemics, they spend lot of time in the social medias. So next page, next slide. So in this pandemic, they having increased their obesity, lost their interest in the outdoor games. Like that, they have also having a parents complaint they're having a bad posture. They are getting their bad posture also. In these couple of years, most of the children are having problems like irritations and also in mood swings, also having a postural abnormality. In all these things will lead to decrease their basic motor skill. It means like that in I can start in English and Hindi also. Okay. All these never gain their basic normal motor skills. In the human beings, in the generation of many children have they lost all these things due to the indoor games or spending most of the time in the social medias. They also lost the joy of movement and also having their increase in obesity and couple of eating habits also have developed. Next, next page. Okay. By playing sports, kids having their increase their bone density levels, improve in their sleeps, and also improve their mood, decrease the risk of obesity, increase the cardiovascular fitness, improve their coordination and balance. So, sports is one of the main most important things in all of the children. Not only in the kids of normal kids, they have to some kids of disabled like CP, Down syndromes, ADHD, autism babies also need the therapy session should be like that. They should be activated in a play mode so that they will be interest from both the sides, normal kids and also in the disabled babies also. We have to treat the therapy sessions in a play mode. Okay, by which they can have their increase in bone density levels, also improve their sleep levels and their mood swings also decrease. Then also having their increase in proper cardiovascular fitness levels, which is very much important. In sports, also we have to train them in a motor development of the skills. Gross motor, fine motor activities also developed from the sports. Also. There is a coordination and balance techniques also helpful for the kids through sports. By improving your child's health, just a beginning, which is the motor milestone development. It also helps in promoting the brain development, memories, and cognitions. The vigorous activities need to develop their brain, also along with the sports of indoor and outdoor games. So most of the schools are practicing their timetable for weekend sports also in every day also there is a 40 to 45 minutes of sports session or sports periods are there like that they used to go inter school intra school then regional level cluster level then national level then school India and Khelo India programs all there. Next, to develop the body brain connection, that is more important is the movement, which is important for every kid. It means there is an golden period for 7 to 11 years. There is a learning period for the sportsmen or the children, those who play or those who engaged in the sports activities. They get more develop the brain functions also. The studies have uh, told that there is an increase in those have increase in sports activity. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir, you're Hello. audible. Yeah. The development of the brain and the body connection helps through the sports is very much important. So that it's not only like that the baby those are studying more time they will have a get the rank one or rank two. It's not like that. Those are having their sports where also career building their in career in sports. They also having a better opportunity to get into there. Their brain development also good better than the those who are having daily studying in only for career oriented. The children they, during this time the children should learn the basic motor gross motor milestones should also develop. In fact there is a physical movements in order to develop the functional visual skills. More movements is developed so that eye hand coordination but so their handwriting also get increased in the proper handwriting proper coordination proper concentration also developed.
There are some challenging sports which will help them to cope up with the peer bodies or the peer childrens. Next. Sports offers a wide range of physical, emotional, and social benefit for the kids, as well as create the healthy habit for the discipline which lasts into the adulthood. It means that those children will play or involved in the sports or the physical activity, they having their tendency to develop a discipline first, healthy lifestyle. Then they have a cope up with the team spirit, cope up with the any situation they can having a personality growth. Then we can ask that when we can start the sports. In babies, we can develop from 3 years to 6 years is a golden period, then 6 years to 11 years also golden period, then 11 years to 15 years is in adolescence age. Like that, there is a development in the basic motor milestones. Basic motor skills will be developed in 3 to 6 years through sports is very much important. Then they can have then ideas of getting an eye-hand coordination, perform the complex motor taxes into a simple way. Those who play in outdoor games, they have a strategy or teamwork rules to get into the involvement of the issues. There is still a range of skills to adapt the creative modified games played with basic levels of running, swimming, kicking ball, footballs, and all, which will be helpful in the organized sports. These all will be helpful for the development of the growth and development of the physical growth, mental growth is very much important for a kid. Those kids will have a physical and mental growth in a coordinated way. They will having a good habits in their which lasts for the adult. Next page. So we can ask that what are the benefits of it? The physical, emotional, and social development is very much important. As I told before, they help in decrease in the obesity. First of them, they everybody having a problem that my child is getting obese. They should know that why the baby is getting obese. Obesity is due to there is a problem of eating and sitting. But if they will have to engage their children in the outdoor games, that will helpful decrease in the obesity. Increase in cardiovascular fitness. Increase in cardiovascular fitness, it means they have to improve their cardiovascular fitness by doing the endurance activities, playing activities like football, running, swimming, cycling, anything which will be minimum of 40 to 45 minutes per day. It is more than enough. Healthy growth of bones, muscles, ligaments, and tendons, which means though there is a rule of stress rule, which means that as much as you work, your muscles will be growth, your bone will be strengthened, so that your fitness level will be maintained. Improve motor skills, including coordination and balance. Coordination, balance is very much important in the kids for the development of the normal posture, normal alignment. Okay, the motor skills will be developed through the playing activities is very much important so that we involve the kids in a play mode which will helpful in the development of the motor skills also, which will helpful in the adulthood. Greater ability of physical relaxation is very much. Those who have the ability to play, they having a good sleep at the night, improve the sleep also. They boost their brain development, including increasing academic learning also. Those children have the study shows that those children involved in the proper sports or physical activity, they are also having a boost brain development. Also, they are good in academic learning. Emotional health benefits as the greater confidence of the self-esteem. It means they will having a greater confidence to cope up with the situation. They can easily solve the conditions or playing a team effort will be there. Improve social skills. Social skills means they create a friendship with the other team members are helpful. Their discipline will be there. Having a fun with others, which all improves their social skills. Improve the personal skills in coordination and cooperation, teamwork and leadership will be there. Those who having their importance of the sports, those who play or teamwork leadership will be easily developed. To reduce the screen time and the sedentary lifestyle is one of the most important thing which will helpful in the benefits of the playing outdoor games. Next. Like this, what are the motor skills development through the sports? Motor skill development through the sports is like balancing, throwing, roping, skipping, leaping, kicking, running, jumping, catching, and hopping.
These are the 10 fundamental motor skills which are very much important in the growth and development of the kids from the growing age of 3 to 12, 3 to 15 also. These helpful in the development of their adulthood in the coming areas, so that their balance, coordination and helpful in the events of the sports or in the normal life also. Next, nutrition and sports. Nutrition is very much important role plays in all the sports person, not only in a sports person, all the person, those who are having the proper nutrition, they perform their athletic performance. In athletic, nutrition can help to enhance the athletic performance. As an active lifestyle, exercise routine like that, you have to be a proper nutrition should be there for a healthy and athletic performance. They लाइक दैट कि अगर हम प्रॉपरली नहीं खाएंगे तो एनर्जी हम लोग को नहीं मिलेगा कि वर्कआउट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमको उतना ही जरूरत है जितना हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर बच्चा खेलने के लिए तैयार है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी हमारा ध्यान रखना होगा। अगर हम लोग बच्चा खेलता है मगर उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो तो उसका परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आएगा। लाइकवाइज हम लोग डिजेबल बेबीज में जैसे सीपी या डाउन सिंड्रोम में उनका भी न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उनका ओवरवेट भी ना हो जाए। बोलते हैं हमारे बच्चे ज्यादा खाते हैं मगर हम लोग का आउटडोर वर्कआउट नहीं हो रहा, स्पोर्ट्स में नहीं हो पा रहा, तो उनका परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हुआ है। उसमें भी क्या खाना, जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए और उसमें हम लोग का ऐसे न्यूट्रिशनस फूड खाना चाहिए जिससे कि उनका स्पोर्ट्स और उनका परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सके। और उनका डाइट प्लान जो कि प्रॉपर डाइट प्लान एक डाइटिशियन के द्वारा या न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा बनाना चाहिए, जिसके कारण उनका स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटी जैसे कि आउटडोर में जैसे जो मैराथन रनर है उनके लिए किस टाइप का खाना है, जो स्पोर्ट्स में बच्चे खेल रहे हैं कि अभी उनको 100 मीटर 200 मीटर के लिए खेल रहे हैं तो उनका एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत, एनर्जी आउटकम ज्यादा होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या खाना चाहिए, प्री वर्कआउट में क्या खाना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना है, रिकवरी में क्या जरूरत है, ये सभी एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, एडोलसेंस एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि बच्चे लोगों का इम्प्रूवमेंट होता है कि एज जैसे बढ़ता बढ़ता जाएगा तो उनका बॉडी में चेंजेस आता जाएगा, जो बॉडी में वजन बढ़ता है, वेट बढ़ जाता है, जिसके कारण वो एडोलसेंस एज में कोप अप नहीं कर पाते हैं। मेल एंड फीमेल जो मिक्स जेंडर वाला आता है तो उसमें फीमेल्स में थोड़ा सा ओवर ग्रोथ हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, स्ट्रेंथ में डिक्रीज आता है। उस टाइम पे हमको कैसे कोप अप करना इन द प्यूबर्टी एज में, जो बच्चे 6 से 12 साल तक अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, 12 से 15 साल होने के टाइम पे उनका परफॉर्मेंस में थोड़ा चेंजेस आया था। तो उस टाइम पे हम लोग को किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, तो वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस आएगा, उनका चेंजेस हमको कैसे करना चाहिए, वो सभी भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनका हार्ट और लंग्स में कोऑर्डिनेशन के सिस्टम में और उनका बूस्टअप कैसे करना चाहिए, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम उसके अनुसार से कैसे चेंजेस होना चाहिए। तो एथलेटिक परफॉर्मेंस में उनका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कोई कोई बच्चे मेल एंड फीमेल अगर देखेंगे तो फीमेल्स में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा डाउन हो जाते हैं, उनका ओवर वेट हो जाता है, एक्टिविटी में उनका परफॉर्मेंस में थोड़ा डिक्रीज आता है, तो उन उस टाइम पे हमको इमोशनल सपोर्ट भी उनको उतना देना चाहिए। एज ए फिजियो हमको ये सभी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा जो परफॉर्म कर रहा था परफॉर्म करने में क्यों देर हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस की कमी क्यों हो गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो वो परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, फिटनेस टेस्ट फॉर द स्कूल किड्स। तो 6 बेसिक फिटनेस टेस्ट होता है। तो सबसे पहला आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा एंडोरेंस, फिर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ क्या है, टारगेटेड हार्ट रेट क्या है, फिर बॉडी मास कैलकुलेशन जो बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट में हम लोग का क्या होता है कि आपका बॉडी का फ्लेक्सिबल, मसल का लेंथ जितना, मसल लेंथ कितना, बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है एक परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सिटिंग रीचेस, बैठ के आप अपना पैर को छूने बोलेंगे, बच्चे अगर छूता उसका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कितना है, तो खड़े होके उसका पैर को छूना है तो हैमस्ट्रिंग में उसका स्ट्रेचेबिलिटी कितना है, बॉडी में फ्लेक्सिबल कितना है, तो उसके अनुसार ये फिटनेस टेस्ट के अनुसार से हम वो बच्चे को बोल पाएंगे कि वो कौन सा गेम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसको उस गेम में देना चाहिए। फिर एंडोरेंस टेस्ट में, एंडोरेंस टेस्ट में हम लोग को ये क्या होता है कि हम लोग 6 मिनट 12 मिनट वॉक टेस्ट होता है, फिर उसका यो यो टेस्ट होता है, जिसके कारण उससे हमें पता चलता है कि बच्चा कितना एंडोरेंस, कितना स्ट्रॉन्गर है कि वो परफॉर्म कर सके, तो उसके अनुसार उसका कौन सा गेम में हम उनको डाल सके। ये सभी एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो कैसे टेस्ट करे। फिर उसके अनुसार से उसका स्कूल लेवल में बहुत सारा गेम्स होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी, खो खो, फिर आपका हो गया बॉक्सिंग, हो गया किक बॉक्सिंग, हो गया तो डिफरेंट लेवल में आपका कबड्डी हो गया,
डिफरेंट लेवल में डिफरेंट स्पोर्ट्स को हम हर एक कैटेगरी में नहीं दे सकते। वो बच्चों का असेसमेंट आपको परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि वो कौन सा स्पोर्ट्स में वो फिट हो रहा है, उसके अनुसार से हमको असेसमेंट के बाद हम उनको वो स्पोर्ट्स में हम उनका इंटरेस्ट के अनुसार से हमको उनको उसमें एंगेज करना चाहिए। फिर अपर बॉडी बॉडी स्ट्रेंथ हो गया, वो कितना सारा पुशअप मार पा रहा है, हमको मिनिमम 10 से 15 पुशअप्स की जरूरत है एक अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। कोर स्ट्रेंथ में जैसे आपका प्लैंक्स कराते हैं, प्लैंक्स में जैसे कि टोटल बॉडी वेट ऑन योर एल्बोस एंड टो में होना चाहिए। फिर वो मिनिमम हम लोग को 1 मिनट का कोर टेस्ट होता है, 1 मिनट प्लैंक्स अगर कर दिया तो उसका कोर स्ट्रेंथ ठीक होता है। टारगेटेड हार्ट रेट, उसी अनुसार हम लोग का टारगेटेड हार्ट रेट अचीव करने के लिए ट्रेडमिल में हम लोग दौड़ाते हैं। टारगेटेड हार्ट रेट हमको मेजर करने के लिए 220 माइनस द एज होता है। फिर एज ए बॉडी साइज कैलकुलेशन, जैसे कि बीएमआई बोलते हैं, बीएमआई आपका हाइट बाय वेट के अनुसार से इंटू मीटर स्क्वायर में आपका कैलकुलेशन कराया था। उससे आपको पता चलता है ओवर वेट है कि नॉर्मल है कि अंडर वेट है। अगर अंडर वेट है तो हमको खाना न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात करके हमको उसका वेट के अनुसार से उसका एक्सरसाइजेस को प्लान करना चाहिए। ओवर वेट है तो उनका डाइट प्रॉपर करके फिर एक्सरसाइज को थोड़ा ज्यादा ऐड करना चाहिए। फिर आपका नॉर्मलाइज है तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी जो कि हम लोग का एक्सरसाइजेस आर इंपॉर्टेंट इन गुड हेल्थ, बट पीपल ऑफन गेट इंजूर्ड। ये कॉन्टैक्ट गेम्स में क्या होता है ना, हर एक बंदा का इंजरी तो होता है। अगर स्पोर्ट्समैन है तो उसका एक इंजरी होना वो कंपलसरी होता है उनका थ्रू आउट द कैरियर। तो स्पोर्ट्स इंजरी जो है हम बच्चों के द्वारा से हम लोग देखेंगे तो सबका स्पोर्ट्स इंजरी होने से हम उसको डैमेज होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स ड्यू टू द एक्सरसाइज और एथलेटिक इवेंट वो एक्यूट या क्रोनिक में डेवलप। एक्यूट केस में हमको क्या करना चाहिए, उनको मैनेज कैसे करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्रोनिक में हमको कैसे करना चाहिए डिफरेंट हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं कभी कभी कि हमको नहीं बताते हैं इंजरी होने के बाद, क्योंकि वो जाके उनका इवेंट में खेलने देंगे कि नहीं करके वो बच्चे खेलने नहीं देते हैं, वो छुपा देते हैं कभी कभी, तो वो क्रोनिक लीड कर देता है प्रॉब्लम्स में। तो स्पोर्ट्स इंजरी तो सबका होता है। फोर स्पोर्ट्स इंजरी में जैसे कि कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी जैसे एंकल स्प्रेन हो गया, नी इंजरी हो गया, बैक शोल्डर, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो हमका हिस्ट्री इसलिए थेरेपिस्ट को इम्पोर्टेंट है कि बच्चा किस टाइप का स्पोर्ट्स खेलता है, कॉन्टैक्ट गेम्स में क्या गेम खेल रहा है, तो जिसके कारण उसका इंजरी हो रहा है और इंजरी होने का चांसेस कितना है, कॉन्टैक्ट गेम्स में चांस कितना है, और आपका वो परफॉर्मेंस के अनुसार से उसका इंजरी में कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे, यस, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेनिंग में आपका क्या होता है ना, 6 प्रकार का होता है। वो जब भी हम लोग, वो एक कोच, आपका पीटी टीचर या तो फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट, ये एक टीम वर्क होता है कि वो हम लोग ट्रेनिंग सेशन बच्चों में या एडल्ट में कैसे करते हैं। वो स्पेसिफिसिटी क्या होता है, प्रोग्रेशन कैसे करते हैं, ओवरलोडिंग, एडेप्टेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड वेरिएशन, ये 6 प्रकार का चीजें हैं जो कि हम लोग को ध्यान रखना है एक ट्रेनिंग सेशन में। बच्चों को जब भी ट्रेन करते हैं को स्पेसिफिसिटी, तो हम लोग कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप को हम मसल को एक्टिवेट करते हैं कि उसका जो कि एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स है उससे वो हेल्पफुल होता है। जैसे कि एक एथलेट है, उसका लोअर लिम्ब का स्ट्रेंथ उतना ही स्ट्रेंथन होना चाहिए उसके जिसके अनुसार से अपर लिम्ब का वो रेशियो में कम होने से भी चलेगा, मगर उसका लोअर लिम्ब का स्ट्रेंथ उतना ही स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। जैसे हम लोग फुटबॉल प्लेयर है तो उसका लोअर लिम्ब ग्लूट्स क्वाड्रिसेप काफ का मसल कितना एक्टिवेट होना चाहिए। एक वॉलीबॉल प्लेयर है तो उसका काफ में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्वाड्रिसेप में कितना स्ट्रेंथ होना, उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस को हमको स्ट्रेंथन कराना। फिर उसका फ्लेक्सिबिलिटी का अनुसार से करना है कि स्ट्रेंथन करना है, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिसिटी। अगेन द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन माने हम लोग को कैसे करना कि पहले स्ट्रेंथनिंग जो कि थेराबैंड में करते थे तो वेट ऐड करेंगे, वेट के आस्ते आस्ते हर वीक हर महीना हर 2-3 महीना में उसका स्ट्रेंथ को गेन कर फिर कैलकुलेट करके फिर अनुसार से हमको प्रोग्रेशन करना है। नहीं तो एक स्टेज आ जाएगा फिर उसका प्रोग्रेशन नहीं होगा, उसी एरिया में रह जाएगा। ओवरलोडेड, ओवरलोडेड माने क्या होता है कि आपका लोड जो है ना, बच्चा जितना लोड ले सकते हैं स्ट्रेंथ में ट्रेनिंग में उतना ही लोड देना चाहिए। हम ओवरलोड कर देंगे तो अच्छे की जगह खराब है। जैसे कि हम लोग खाना जितना खाना चाहिए उतना ही खाएंगे, अगर ज्यादा खाएंगे तो लूज मोशंस हो जाए, वैसे ओवरलोड जब कर देंगे तो मसल इंजरी या फर्दर टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी कुछ भी होने का चांसेस है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मैंने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बॉडी एडेप्टेशन आ जाता है, तो उस टाइम पे हमको वेरिएशन जरूरत होता है कि चेंजेस की जरूरत होता है कि बॉडी को एडेप्ट कैसे, एडेप्टेशन से हम कैसे बचा सके। तो नया ऐड करना चाहिए टेक्निक्स या तो फिर नया हम लोग का स्ट्रेंथन प्रोटोकॉल्स को हमको चेंज करना, वो एक थेरेपिस्ट और कोचेस के साथ बात करके बच्चा ये चीज को अडेप्ट कर लिया है फिर उसको वो टेक्निक को चेंज करना, या गलत टेक्निक को अडेप्ट करते हो हमको वो वीडियो एनालिसिस करके चेंज करना चाहिए। रिवर्सिबिलिटी,
रिवर्सिबिलिटी जैसे कि आप लोगों का इंजुरी के बाद बच्चा को फिर परफॉर्म करने में वही प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको रिवर्सिबल करना है, नॉर्मलाइज करना है, जो प्रीवियस उसका जो एक्टिविटी था उसको नॉर्मल लाने के लिए हमको कौन कौन सा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उसको हीलिंग के लिए एक्टिविटी करना है, फिर स्ट्रेंथन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी उसका ऐड ऑन करना है, तो रिवर्सिबल हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस था पहले इंजरी से पहले उसको नॉर्मलाइज करके वो परफॉर्मेंस को लेके आने की। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मैंने जैसे कि हम लोग का एक स्पीड फास्ट बॉलर का फॉर एग्जांपल ले लेंगे, तो वो एक ही वेरिएशन में डाल रहा था, तो उसके कोच के अनुसार से वो टेक्निक चेंज कर दिया, तो उसका मसल का वो जो सा मसल यूज कर रहा था उस मसल को एक्टिवेट करने के लिए अभी दूसरा मसल को कंपनसेट करना पड़ रहा है। तो उस वेरिएशन अगर हो गया था हमको वो बायोमेकेनिकल चेंजेस क्या आ गया, फिर कौन सा मसल को एक्टिवेट करना, वो हमको वो ट्रेनिंग सेशन में along with the children, along with the kid, along with the player, along with the coaches हम लोग को डिस्कस करके वो वेरिएशन को चेंज लेके आना। नेक्स्ट, tired athlete. Persistent tiredness is often accompanied by the feeling of lethargy or impairment sport performance. अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक बंदा छोटे बच्चे की हम लोग वो खेलते खेलते थक जा रहा है कि वो लेथर्जिक फील कर रहा है, तो हमको वो उस एरिया में हमको उस कैटेगरी बच्चों को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वो उसका लेवल उतना ही है, हमको उससे ज्यादा ले रहा है तो बंदा टायर्ड हो जा रहा है, तो और उसका परफॉर्मेंस में इम्पेयरमेंट आ जा रहा है, मतलब कम जा रहा है। इट इज ए फ्रीक्वेंट सिम्टम्स ऑफ द स्पोर्ट्समैन और द स्पोर्ट्स पर्सन, जिससे हम लोग को इंजुरी और ज्यादा होने का चांसेस है। तो कंप्लेंट जब स्पोर्ट्स पर्सन करता है कि सर मेरा ये टायर्डनेस हो रहा है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या तो फिर ये ओवर यूज है, हमको उसको ध्यान रखना चाहिए, उसका उस जगह पे हम लोग को ओआरएस या आपका जो सप्लीमेंट्स होता है कि उसको दे के फिर न्यूट्रिशन ऐड करके स्पोर्ट्स में उसको नॉर्मलाइज करके फिर टायर्ड एथलेट से उसको नॉर्मल करने के लिए रिकवरी फेज जो होता है उसको कोच के साथ, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ भी हमको डिस्कस करना है कि वो इतने के बाद अगर वो 2 किलोमीटर दौड़ पाता है तो तीसरा किलोमीटर जाते जाते वो टायर्ड हो जाता है, तो उस टायर्डनेस के कारण हमको क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशन क्या खाना चाहिए, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, कोच के साथ डिस्कस करना या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करना है कि उसका परफॉर्मेंस क्यों कम होता जा रहा, तो वेट अगर बढ़ गया तो परफॉर्मेंस भी कम हो रहा है, टायर्डनेस उसका डेवलप कर रहा है कि कोई मेडिकल कंडीशन है क्या उसको भी, जैसे हार्ट और लंग डिजीज जैसे है क्या, कि अस्थमाटिक है, सीओपीडी है, तो उसको भी नॉर्मलाइज करना, मसल इंजरी कुछ है कि वो टायर्ड हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको कॉमन इंजरीज या ओवर यूज इंजरी से बचाना चाहिए। नेक्स्ट, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम मैंने बच्चे कोचेस क्या करते हैं ना, बच्चों को ज्यादा ट्रेन करने के, अच्छा परफॉर्मेंस करने के चक्कर में क्या करते हैं वो ओवर ट्रेन कर देते हैं। ओवर ट्रेन सिंड्रोम में क्या होता है, देयर परसिस्टेंट टायर्डनेस इन द स्पोर्ट्स पीपल, this may be an disease, serious sports person or clarify exactly meant for certain terms or overused, overreaching, overtraining। एक ऑप्टिमल लेवल के बाद भी उनको ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे कि उनका ट्रेनिंग सेशन होता है 1 घंटा 1.5 घंटा का सुबह या 1 घंटा शाम को, मगर वो क्या करते हैं कि सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा जब ट्रेनिंग करते तो ओवर ट्रेनिंग हो जाता है, जिससे उनका फैटिकनेस बढ़ जाता है, बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, स्ट्रेस इंजरीज होने का चांसेस ज्यादा है, इंजरी परफॉर्मेंस में अच्छा होने की जगह खराब हो जाता है, तो उन लोग उस जगह हमको थेरापिस्ट के अनुसार से हमको एक कोचेस एंड आपका जो सबऑर्डिनेट स्टाफ, स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना कि इनका ओवर ट्रेनिंग हो रहा, अगर ओवर ट्रेनिंग हो रहा तो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस की जगह खराब होने का चांसेस ज्यादा है, तो हम लोग को उस जगह पे आपका दूसरा एंडोक्राइन डिजीजेस भी आने का चांसेस है, क्योंकि बॉडी में आपका किडनी अगर लिवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, पानी की कमी हो जाए तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी या तो फिर ब्लड सर्कुलेशन ग्लूकोज की लिमिटेड हो जाता है, तो ओवर ट्रेनिंग में ये अदर सिस्टम्स को इफेक्ट करने का चांसेस बहुत है, तो इसके डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क होना चाहिए, थेरापिस्ट, कोचेस, पेरेंट्स, टीचर, स्कूल डिस्कस, उसका हेल्थ इश्यूज, उसका ट्रेनिंग सेशन कितना होना चाहिए, दिन में 45 मिनट्स या इवनिंग में 45 मिनट्स के मैंने नॉर्मलाइज ब्रेकअप कितना चाहिए, रिकवरी फेज कितना रखना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड के बाद, ये सभी हमको डिस्कस करना है, या तो फिर दिस इज डिजॉल्व ओवर ट्रेनिंग सिम्टम्स। नेक्स्ट पेज, ये ट्रेनिंग सेशन में आपको क्या होता है, वार्मिंग अप। वार्मिंग अप इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द मसल एक्सरसाइज टू परफॉर्म बाय एक्सरसाइजिंग और पार्टिसिपेटिंग जेंटल बिफोर यूजिंग ए अंडरटेकिंग बिफोर ए परफॉर्मेंस और द प्रैक्टिस। माने जैसे कि एक सुबह उठ के आए बच्चे क्या करते हैं, विदाउट वार्म अप खेलने लगते हैं, क्योंकि उनका वो प्रोटोकॉल से चेंज करना होगा कि बच्चे को वार्म अप करना है, जिसके कारण वो आपके आप मसल्स को एक्टिवेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे आपका इंजुरी प्रिवेंशन होगा, फिर आपका मसल क्रैम्पिंग, ओवर एक्सर्शन होने से हम बचा सकते हैं। ये चीज हमको
प्लेयर्स जो बच्चे हैं, अभी से हम लोग अगर उनको बोल देंगे तो उनको एक दिमाग में बिठाना चाहिए, खेलने से पहले वार्म अप होना चाहिए। बॉडी अगर प्रॉपर वार्म अप में नहीं होगा तो इंजुरी उसी के कारण ज्यादा चीजें होता है। तो हम लोग को वार्म अप की जरूरत बहुत ही है। तो वार्म अप का इम्पोर्टेंस आपका स्टूडेंट्स या आपके जो प्लेयर्स हैं उनको अभी से एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण वो आपके कोचेस होंगे, आपके थेरेपिस्ट के साथ डिस्कशन होना चाहिए कि वार्म अप का टेक्निक्स क्या होना चाहिए, वार्म अप कितना टाइम करना चाहिए खेलने के पहले, या तो फिर पहले आके खेल ले तो मसल स्पैज्म होने का चांसेस बहुत है। नेक्स्ट पेज। का कूल डाउन, वार्म अप के बाद आप खेलने लगे, फिर उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज जो होता है कि स्लो जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सभी आपका कूल डाउन एक्सरसाइज आता है। जितना बॉडी के मसल जो खेल के थका हुआ है उसको अभी क्या करना है, कूल डाउन करके रिकवरी करना है। या तो फिर बच्चे क्या करते हैं, गेम्स पीरियड खत्म हो गया, हम चले फिर अपने आप उसी के अनुसार से फिर क्लास में बैठे पढ़ने लगे, तो मसल जो कि फैटिक हो गए हैं, फिर टाइटनेस बढ़ जाता है, उनके मसल में क्रैम्प होने का चांसेस ज्यादा है। तो आपका जो 45 मिनट से 1 घंटे का पीरियड में 10 मिनट वार्म अप होना चाहिए, फिर आपका 45 मिनट्स में डिवाइड करना चाहिए, 10 मिनट वार्म अप हुआ, 10 मिनट कूल डाउन, बीच वाला पीरियड उनका प्ले मोड होना चाहिए। प्ले मोड में फिर से वो एक्टिविटीज क्या क्या करना चाहिए उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। या तो फिर आपका रेशियो बिटवीन वार्म अप एंड कूल डाउन शुड बी प्रॉपर, वरना आपका मसल इंजुरी चांसेस है, मसल रिकवरी नहीं हो पाएगा, फिर वो स्ट्रेंथनिंग के लिए जो भी है हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो जिसके कारण आपका दूसरा प्रॉब्लम्स जनरेट होने का चांसेस बहुत है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन। स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन तो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर हम लोग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे कि वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स सच एज हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव पैड्स एंड अदर गियर्स, वार्म अप और कूल डाउन, रूल ऑफ द गेम्स हमको बता देना चाहिए, वॉच आउट फॉर अदर्स, डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड। जैसे कि हम लोग का क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग का लेग गार्ड, हेलमेट सर से लेंगे तो हेलमेट पहनना पड़ेगा, एल्बो गार्ड, चेस्ट गार्ड गार्ड पैड्स, ग्लोव्स सब पहन के हमको इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमको पहनना पड़ता है। फिर उसके बाद वार्म अप कूल डाउन, जैसे अभी आगे समझाया हूँ कि वार्म अप भी प्रॉपर होना चाहिए, कूल डाउन भी प्रॉपर होना चाहिए, जिसके कारण हमको स्पोर्ट्स इंजरी से हम लोग को बच सकते हैं, कि जो मसल को प्रिपेयर होने से पहले हम खेल लेंगे तो इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या था, रूल ऑफ द गेम, नो द रूल ऑफ द गेम, जैसे रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, इसमें आपको रूल्स पता होना चाहिए प्लेयर गेम का, क्योंकि ये सभी कॉन्टैक्ट गेम्स है, अगर रूल्स पता नहीं होगा तो इंजुरी चांसेस बहुत, अगर आप ऐसे प्लेयर के साथ खेलते हैं, एक प्रोफेशनल है एक नॉन प्रोफेशनल आ गया, तो उनके साथ अगर खेलते हो मिक्सअप में तो इंजुरी चांसेस का बहुत ज्यादा होता है। रूल्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जोश में आके क्या बोलते हैं, सर चलेगा मैं खेल लूंगा, ऐसे बोल देते हैं, तो हमको वहां नहीं खिलाना है उनको, उस जगह पे आपको इंजरी है ना, आपको रेस्ट की जरूरत है, उनको बोलना चाहिए इंजरी से रिकवरी होके फिर आके आपको खेलना पड़ेगा। विदाउट इंजरी का रिकवरी के पहले उनको खेल लेंगे तो फर्दर इंजरी होने का चांसेस है, उनको समझाना चाहिए। अगर वो बच्चे क्या होता है ना, नहीं समझ पाते हैं, तो जिसके कारण आपका फर्दर इंजरी होके वो बाद में परफॉर्मेंस भी खेलने के, जब आपका कंपटीशन होता है उस टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उस टाइम के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, तो इंजुरी प्रिवेंशन में हम लोग का क्या होता है ना, पोस्चर असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोस्चर असेसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल विच कैन बी यूज्ड टू असेस द रीजन बिहाइंड द वेरियस इंजुरीज। हम लोग का ऐसे पोस्चर का इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग का बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का वो इंजुरी क्यों होता है उससे पता चल जाता है। रिपीटेटिव लोडिंग क्या होता है, वो बंदा जैसे आपके वेट लिफ्टर है या रनर है, लॉन्ग रनर है, मैराथन रनर है, तो उनका किस टाइप का पोस्चर है, पोस्चर के अनुसार आपका इंजुरीज क्या क्या होने का चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट प्लेयर है तो फास्ट बॉलर है, तो सुप्रास्पेनाटस ज्यादा वो खेल करके क्या होता है ना, सुप्रास्पेनाटस का क्या इंजरी है, या उसका फुट अलाइनमेंट में क्या है, फुट में अगर फ्लैट फुट है वो तो ज्यादा देर नहीं दौड़ पा रहे, तो बच्चे आके कंप्लेंट देगा आपको कि सर मेरा नी पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है। अगर हम लोग वहां नी पेन में फोकस कर दिए तो गलत हो जाएगा, हमको आइडेंटिफाई करना कि पैर में उसका क्या प्रॉब्लम। अगर आर्चेस प्रॉपर नहीं है तो उनका क्या होता है ना, फुट फ्लैट फ्लैट फुट के कारण उनका नी में इंजुरी, स्पाइन में इंजुरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इंजुरीज को प्रिवेंट करने हमको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, पोस्चर असेसमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज, importance of biomechanics in the sports. Biomechanics use technique including the mathematical modeling and the computer stimulating in the measurement of enhancing the wide range of reducing the injuries.
जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स जैसे खेलते हैं कि बहुत सारा इंजुरीज को हमको प्रिवेंट करने के लिए बायोमैकेनिक्स का हेल्प बहुत लेना पड़ता है। हम लोग का जो एक टेक्निक में अक्सर खेल रहे हैं बंदे, अगर फुटबॉल खेल रहा है कि वॉलीबॉल खेल रहा है मगर उसका टेक्निक खराब है, तो वो रॉन्ग पोस्टर में रॉन्ग टेक्निक में वो खेल रहे थे, रिपीटेड सोर्स ऑफ इंजुरी आपका सुप्रास्पाइनल टेस्ट या फिर शोल्डर इंजुरी होने का चांस। अगर जंप कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, लैंडिंग के टाइम पे उनका प्रॉब्लम होगा, तो वो लैंड प्रॉपर नहीं कर पा रहे जिसके कारण उनका इंजुरीज हो रहा है। तो बायोमेकेनिक्स के अनुसार से हमको उनका फुट का असेसमेंट करना, नी में इंट्रोवर्सन है कि रेट्रोवर्सन है आपका हिप जॉइंट में, नी में इंस्टेबिलिटी है क्या, उस जगह पे आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट कि नी, शोल्डर, उसके साथ कोऑर्डिनेशन अपर बॉडी और लोअर बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई कितना क्या है, वो जंपिंग में उनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो बॉलिंग करते हुए मसल का स्ट्रेच कितना हो रहा है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोमेकेनिक्स, जिसके कारण आपको वीडियो एनालिसिस करना पड़ता है। वीडियो एनालिसिस करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वीडियो एनालिसिस में आपको कि वो स्पेसिफिकली कौन सा एरिया में उनका प्रॉब्लम आ रहा है। बच्चे आजकल जैवलिन थ्रो करते हैं, या तो जैवलिन थ्रो में भी अगर आप करने टाइम में सुप्रास्पाइनल या तो शोल्डर इंजुरीज का चांसेस ज्यादा है, तो अपना वो ट्रंक में मूवमेंट नहीं लाके अपना शोल्डर यूज करें कि बायोमेकेनिक्स वीडियो एनालिसिस से आपको बहुत हेल्पफुल होता है स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट, muscle memory. Muscle memory and its uses in the sports. Muscle memory is very much important for the athletes. Muscle memory allows the athletes to perform motor function faster and with a greater accuracy without having to think about them. ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्सर है, वो छोटे बच्चे हैं, वो बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करके उनका मसल वो चीज को मेमोराइज हो गया कि वो मूवमेंट क्या है, उनको वो पता चल जाता है कि ये मूवमेंट हम लोग का बॉक्सिंग में यही मूवमेंट करना चाहिए। तो रिपीटेड मूवमेंट में एग्जैक्ट टाइम में वो कैसे परफॉर्म करे, उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। जैसे आपका इंजुरी के बाद रिकवरी में अगर नहीं कर पा रहे, प्रॉपर रिकवरी नहीं हो रहा, तो मसल वो मेमोरी, वो मूवमेंट का क्या काम है, मसल का इंस्टेबिलिटी क्या है, मसल वो प्रॉपर मूवमेंट अगर भूल गया, तो आप लोगों का क्या होता है ना, मसल मेमोरी को हेल्प करना पड़ता है कि आपको स्पोर्ट्स में रिटर्न बैक आने के लिए बहुत सारा टेक्निक से, जिसके कारण आपका मसल मेमोरी को रीगेन करके आपको रिटर्न बैक टू द स्पोर्ट्स आ सकता है। नेक्स्ट, neurokinetics in the sports. It is based on the permission of with when an injury occurs. अगर एक इंजरी हुआ है तो उस एरिया के मसल्स क्या होते हैं ना, वीकेंड हो जाते हैं, तो फोर्स जहां से जनरेट करना पड़ता है कि मसल को, वो नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है ना, ओवर कंपनसेट टू वर्क हार्डर मच टू कॉज द टाइटनेस, जिसका कारण टाइट हो जाता है और कॉजिंग पेन। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि अगर उसका शोल्डर पेन है, ये फोटो में देख लीजिएगा, अगर उसका फुट इन्वर्टेड है तो शोल्डर कैसे अलाइनमेंट में चेंज आ रहा, तो फुट में अगर इंजुरी है तो उसका शोल्डर पे परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आ रहा, उसको बोलते हैं न्यूरोकाइनेटिक्स। अगर हम लोग का एक स्पोर्ट्समैन जैसे है आपका स्प्लिट सॉरी जैवलिन थ्रो करते हैं, जैवलिन थ्रो में क्या करता है कि अगर हम लोग का लेफ्ट साइड का फुट में इंजुरी है तो उसका शोल्डर में भी आपका प्रॉब्लम और उसका परफॉर्मेंस में कम होने का चांसेस है, क्योंकि फोर्स जनरेट फ्रॉम द फुट, इट ट्रांसफर फ्रॉम द हिप, फिर उसके बाद ऑपोजिट शोल्डर, फिर उसके बाद हाथ, फिर हाथ से थ्रो करता है फिंगर्स। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर, काइनेटिक चेंज, तो उसके अनुसार से हम लोग का इंजुरी भी उसी के अनुसार से हो जाता। तो हम लोग उसका शोल्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा करके हम शोल्डर में ध्यान दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो हम लोग को फुट में भी असेसमेंट करना पड़ता है कि फुट अलाइनमेंट में क्या चेंजेस है, जिसके कारण वो फुट अलाइनमेंट प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पा रहा, तो ऑपोजिट शोल्डर का फोर्स में नहीं दे पा रहा। तो न्यूरोकाइनेटिक इन स्पोर्ट्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। एज ए थेरेपिस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, वेयर इज द प्रॉब्लम, इज इट ड्यू टू द शोल्डर और इज इट ड्यू टू द लोअर मिड। नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग जो कि इज एन फिजिकल एक्सरसाइजेस व्हिच रिक्वायर्स टू पुट द बॉडी इन सर्टेन पोजीशन। मसल आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेंटेन द लेंथ ऑफ elongation of the muscle, we have to do the stretching। तो स्ट्रेचिंग में भी आपका टाइप्स आ गया, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग और पीएनएफ टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग which can be utilized in the sports। तो स्ट्रेचिंग इज अ वेरी गुड थिंग, बट ओवर स्ट्रेचिंग कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों में क्या होता है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग सिखा देते हैं। जब they used to do overstretching, it may cause injury or microtrauma। Microtrauma will lead to further injury। So stretching should be in a limit। आप जब स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं तो एक नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल लिमिट के बाहर जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग से ओवर स्ट्रेच हो रहा है, तो मसल का जो लेंथ और प्रॉपर्टी मेंटेन जितना हो रहा है उससे वो बाहर होके आपका मसल का प्रॉपर्टी लूज करने जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी से वो प्लास्टिसिटी का एरिया में जाकर मसल टियर होने का चांस ज्यादा है। नेक्स्ट,
प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज थोड़ा एडवांस टेक्निक्स हो जाता है, जो बच्चों में आपका 6 से 10 साल के बाद, 10 से 15 साल में जब आता है तो उनको जंपिंग, थ्रोइंग, पुशअप्स, किकिंग, ये सभी एक्टिविटीज को, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को एंगेज करके फिर एथलीट को ट्रेन करते हैं, जब उसको प्लायोमेट्रिक पार्ट करते हैं। मगर वो सबको ही कर सकते हैं, मगर एक करने के लिए उनका स्ट्रेंथ, आपका फ्लेक्सिबिलिटी का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने में, प्लायोमेट्रिक करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। नेक्स्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी इन द स्पोर्ट्स। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपका क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी refers to our brain remodeling, adapting and organizing after practice of motor skills। जैसे हम लोग का बार बार रिपीटेड मूवमेंट करते 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 बॉडी हैज डेवलप्ड एन एनग्राम। इट मींस इन ए स्पोर्ट्स, इफ ए प्रैक्टिस इन ए परफेक्ट वे होना चाहिए। वो भी अगर गलत प्रैक्टिस करेगा तो उसका ब्रेन के साथ मसल का गलत टेक्निक एड ऑन हो जाएगा। जब वो गलत टेक्निक एड ऑन हो जाए तो वो गलत परफॉर्म आ जाएगा। सो आप लोगों को न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूटिलाइज करना है इसमें, कि मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए बच्चों में, कि वो परफॉर्मेंस कैसे करें। जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका स्किल्स और वो चीज हम लोग टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक कर रहे हैं। जो अगर गलत टेक्निक सीख रहा है तो स्पेसिफिक एथलेट्स को स्किल्स उसका लूज हो सकता है। तो प्रॉपर टेक्निक विद प्रॉपर स्किल्स विद प्रॉपर गाइडेंस हेल्पफुल इन न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके कारण उसका स्किल टू प्रैक्टिस, रिपीटेड प्रैक्टिस करके उसका एनग्राम डेवलप हो जाता है मोटर स्किल्स में। सो ऑर्गेनाइजिंग वे में होता है, एडेप्टेशन आ जाता है, तो वो परफॉर्म करने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोनर। ये बहुत ही कॉमन चीज है। जब ये बच्चे खेलने शुरू करते हैं तो कंप्लेंट देते हैं, सर मेरा मसल क्रैम्प हो गया। मसल पहले 2 दिन अच्छा खेल लेते हैं, आफ्टर 72 आवर देयर इज आल्सो नोन एज मसल सोरनेस और मसल फीवर। The temporary muscle damage inflammation is a common trigger to the eccentric muscle cramp। जब वो लोअरिंग सीढ़ी के उतरते, हिल सेट, अप एंड डाउन, जंपिंग एक्टिविटीज, फ्रॉग जंप्स, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब जो एक्सेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं तो डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस डेवलप होता है। जिसमें क्या होता है ना, टेम्पररी डैमेज होता है मसल्स का, जो पहले 24 घंटे से में नॉर्मल होता है। बच्चा लोगों को कुछ कंप्लेंट नहीं होता, फिर 2 दिन बाद बोलते हैं सर मेरा पेन हो रहा, पैर में मसल इंजरी होने जैसा लग रहा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बट इट इज ए कॉमन थिंग। सर नेक्स्ट पेज। ये सभी कॉमन होता है, जिसमें कि वो हम लोग को बच्चों को समझाना चाहिए कि पहला जब एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फॉर बच्चे हो या किड्स हो या किसी को भी, ये नॉर्मल है। इट्स ए नॉर्मल थिंग फॉर डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस टू एवरीवन। स्टार्टिंग ए न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम विल बी एडिंग ए न्यू एक्सरसाइज। करंट एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ वो नया जब ऐड हो रहा है तो वो मसल प्रिपेयर नहीं होते। जब वो मसल एक्टिवेट करना चालू करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। मगर उस टाइम पे प्रैक्टिस सेशंस को बंद नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार उसके ऊपर ही हमको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके साथ थोड़ा हल्का स्ट्रेचिंग, हल्का कूल डाउन, वार्म अप एक्सरसाइजेस, कूल डाउन एक्सरसाइजेस, रिकवरी फेज को हमको ऐड ऑन करना चाहिए, जिसके कारण आपको ऊपर कि डिलेड ऑनसेट मसल सुनना वो एडेप्टेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, what is super compensation? Super compensation is a theory but that athlete who pair the training load and proper recovery, फिर टाइम, फिर रिटर्न बैक टू द स्पोर्ट्स, फिर एडेप्टेशन आता है। एक हाई लेवल परफॉर्मेंस को हमको, एक बच्चे को स्कूल लेवल से हमको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म करने के लिए आपको उसको ब्रेन को उसी तरह, मसल को उसी तरह ट्रेन करना है, जिसके कारण ट्रेनिंग सेशन भी उतना होना चाहिए, रिकवरी भी उतना होना चाहिए, फिर एडेप्टेशन आएगा तो प्रोग्रेशन में लेके आना चाहिए। वरना क्या होगा ना, बच्चा एक लिमिटेड रेंज में आ जाएगा। जो कि हम लोग देखते हैं स्कूल लेवल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यूनिवर्सिटी लेवल में जब आ रहा तो वो परफॉर्मेंस उसका डिक्रीज हो रहा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग और रिकवरी फेज में डिफरेंस है। फेज ज्यादा हो रहा, रिकवरी कम हो रहा, आपका एडेप्टेशन का चेंजेस आ जाता है। तो आपका सुपर कंपेंसेशन में क्या होता है ना, रिटर्न बैक टू द नॉर्मल। तो परफॉर्मेंस बेस्ड में हमको चेंजेस करना है, जिसके कैपेसिटी लेवल तो हायर परफॉर्मेंस को लेके जाएगा। नेक्स्ट, mass guarding in the sports is very much important in sports medicine. We have to use the red flags condition. Perhaps there has been the first rather being the minor injury. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन यंग किड्स देयर इज एन काफ स्ट्रेन। आपको इंजुरी आके बोला सर मेरा पैर पकड़ गया, बहुत पेन हो रहा काफ मसल्स में। यू मे हैव ए डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस इन ए यंग बास्केटबॉल प्लेयर हु इज एबल टू, हम लोग को वो एसेस करना कि वो
आपका मसल टियर हुआ है कि जिसके कारण आपका मसल प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण उसका काफ पेन हो रहा है। फॉर दूसरा एग्जांपल है ऑस्गर्ट सिंड्रोम, जो एक्चुअली होता है बच्चों में, उसके कारण वो नी पेन बोलते हैं, मगर वो हम लोग अगर उसको ऑस्गर्ट के समझ के करके कर देंगे तो वो क्या होगा ना, फिर प्रॉब्लम उसको ऑस्टियोसार्कोमा है क्या, हमको वो डिफरेंशिएट करना है, इंजरी की किस जगह पे है, इंजरी क्यों हो रहा है, उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेना चाहिए। नॉट ओनली कि आपका इंजरी एंकल में है तो एंकल के कारण उसका एंकल में ही इंजरी है करके हम एंकल को ट्रीट नहीं करना है, एंकल के चारों तरफ मसल को एक्टिवेट करना है। एंकल के कारण नी में क्या पेन हो रहा है देखना पड़ेगा, फिर नी में करने के बाद कमर में क्या पेन हो रहा है, फिर उसके अनुसार से आपको एक्टिवेट करना होगा आपका। नी इंजुरीज को आपको उतना ही आइडेंटिफाई करना, बिकॉज नी इज एन डिपेंडेंट जॉइंट। नी के ऊपर इंजुरी है तो एंकल में भी पेन होने के कारण नी के पेन हो सकता है, हिप में भी पेन होने से नी जॉइंट में पेन हो सकता है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पेन किस एरिया से हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द स्पोर्ट्स इंजरीज। नेक्स्ट, why the pre-participation evaluation is important. The main goal of this screening is to maximize main goal is to maximize the health of the athlete and their safety. हम लोग को उनका हेल्थ इश्यूज के बारे में हमको जानना चाहिए, जैसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, जनरल मेडिसिन कुछ खा रहे हैं क्या, मस्कुलर इवोल्यूशन करना है, एथलेटिक का फिटनेस लेवल को हमको पता चल जाता है, जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस में कोई हैम्पर ना हो। कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन है जैसे नेशनल लेवल, स्कूल लेवल में, इंटर इंटर स्कूल या तो फिर क्लस्टर रीजनल या नेशनल लेवल में गेम है, तो उसको प्री इवैल्यूएशन करना चाहिए कि ये बच्चा का इंजरी चांसेस क्या है, ये इवेंट उसका है, तो उसके लिए वो परफॉर्म करने के लिए वो प्रिपेयर है कि नहीं, उसका मस्कुलर स्केलेटल इवोल्यूशन कितना है, एथलेटिक फिटनेस कितना लेवल में है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वरना आपका वो इंजरी से ही आएगा बच्चा। तो अगर वो इंजर्ड है या उसका फिटनेस लेवल नहीं है तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देना उसको परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये छोटा इंजरी में लीड टू फर्दर इंजरी, जिसके कारण वो अपना कैरियर भी बर्बाद करने का चांसेस है। तो प्री पार्टिसिपेशन इवैल्यूएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, cryotherapy. Cryotherapy is widely applied for the acceptance of beneficial of treatment of soft tissue injuries, post-operative management, and one of the most effective intervention in the pain management. हम लोग को स्पोर्ट्स इंजरी में जब भी इंजरी होता है तो ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड एक्यूट केयर में आपको क्या देना है, क्रायो में भी आइस, और तो फिर या तो फिर क्रायोथेरेपी बात देना। क्रायोथेरेपी में आइस भी कितना टाइम देना वो भी इंपॉर्टेंट है। हर 2-3 घंटे में 5 से 7 मिनट इज एनफ। अगर आप उससे ज्यादा देते हैं 10-15 मिनट तो आपका हीट का इफेक्टिव है तो इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगा। तो आइस शुड बी गिवन इन एक्यूट केसेस, मगर इट शुड बी इन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours ऑफ गैप, फिर 5 to 7 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन। Exercise prescription is an art. Exercise prescription is a personal specific exercise regimen based on the fitness level or the goals. ये क्या होता है आपका, एक्सरसाइजेस को 4 चीजें में हम लोग को डिवाइड, जैसे आपका मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि ए फॉर फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, आई फॉर इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी में बच्चों को एक्सरसाइजेस कराना, टी फॉर टाइम, कितना टाइम कराना, दूसरा टी फॉर टाइप, किस टाइप का एक्सरसाइजेस उनको कराना है। तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट while prescribing an exercise for an kids. Next, सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे हम बता दिए थे आपको कि हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव पैड्स, डिजाइन, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आपको सेफ्टी, अपना बॉडी को, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उससे पहले आपका बॉडी को प्रोटेक्शन वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ टू परफॉर्म द गेम इन द प्रॉपर वे। नेक्स्ट, इंजरी प्रिवेंशन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज दिस गवर्नमेंट आपका किस प्ले जगह पे खेल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, आपका किस टाइप का इवेंट्स कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और सेफ बॉडी में कैसे खेल रहे हैं बच्चे। चिल्ड्रन कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द इंजरीज बाय डूइंग द एक्टिविटी फिजिकल प्रिपेयर टू स्ट्रॉन्ग एंड doing the activities by their own goods or being a sunlight. Warming up and cool downs and stretching activities are very much important for prevention of injuries. Safety जैसे आपका हेलमेट्स, नी पैड्स, की पैड, आपका एंकल 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 बाइंडर्स और आपका एल्बो गार्ड्स, उसके साथ साथ आपका किस एरिया में खेल रहे हैं, प्रॉपर शूज आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट
फिर वार्मिंग अप एंड कूल डाउन आर इंपॉर्टेंट. स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इंजुरी प्रिवेंशन. नेक्स्ट पेज. जैसे मैं बताया कि आपका सेफ एनवायरनमेंट लाइक बच्चे स्कूल में जाते हैं तो खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, किस टाइप का सरफेस में खेलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट. अगर इंडोर है तो वुडन प्ले में खेल रहे हैं तो इट इज सेफ. बट ग्राउंड में खेल रहे तो बास्केटबॉल सीमेंटेड है तो इट में बी इंजुरी लीड टू नी, एंकल, हिप एंड स्पाइन. और फिर हार्डर सरफेस में खेलेंगे तो इंजुरी उससे ज्यादा हो जाता है. तो किस टाइप का कपड़ा भी पहनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट. अगर एक्सट्रीम हॉट को एरिया में अगर खेल रहे हैं तो उनको क्या होना, हीट टेंडेंसी में बच्चे लोग क्या होता है, फेंटनेस होने की ज्यादा चांसेस भी है. तो स्किल्स ऑफ द सेफ, कैसे वो अपने आप को बचाते हैं, वो भी हमको बच्चों को सिखाना पड़ता है. नेक्स्ट. इमोशंस, जो कि इमोशन जैसे बोला आप लोगों को, बच्चों को फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में खेलते समय या स्पोर्ट्स इंजरी या स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो वो बीइंग ए फिजिकल एक्टिविटी कैन इंप्रूव योर चाइल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द एंजाइटी एंड स्ट्रेस. जब वो बच्चे परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पाते तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उनको सपोर्ट देना पड़ता है, काउंसलिंग देना पड़ता है, फिर उनको एक्टिवेट, उनको मोटिवेशन देना पड़ता है कि आप परफॉर्म कर पाओगे, खेल पाओगे करके. इसके कारण क्या होता है ना, उनका बूस्टअप होता है, इंटरनल स्ट्रेंथ गेन होता है, उनको रिकवरी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर करने से वो परफॉर्म करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं. नेक्स्ट पेज. When to return back to sports after injury. ये दिस इज ए क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एवरी स्पोर्ट्स प्लेयर आस्क यू, सर मैं कब जाकर खेल सकता हूँ इंजरी. बट योर आंसर शुड बी इट डिपेंड्स अपॉन द इज इट ओके टू प्ले, मगर इट डिपेंड्स अपॉन द इंजरी. आपका किस टाइप का इंजरी हुआ, लिगामेंट जो है 3 to 9 months रिटर्न बैक करने में लगता है तो उनको समझा देना चाहिए. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्लियर अनलिमिटेड ट्रेनिंग, मगर उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि प्रायर टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स उनका डर बैठ जाता है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं. उनके अंदर में एंजाइटी रह जाता है, फिर उनके अंदर मोटिवेशन है, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं. तो ये सभी चीजें हमको ध्यान में रखना है कि हम उनको स्पोर्ट्स प्लेयर या बच्चों को जब डील करते हैं, these all things you should be have in your mind while planning them return back to sports. जाने से पहले उनको कैसे साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली आपका रिहेबिलिटेशन सब चीज को लेके करना चाहिए कि आप इतने दिन के बाद आप परफॉर्म कर पाओगे. नेक्स्ट. ड्रग्स एंड द एथलेट. ड्रग्स जो कि आप लोगों का डोपिंग, आजकल तो पता होगा कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दो चीजें हैं जिसमें आपका क्या होता है ना, बच्चे ड्रग्स के कारण के परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं कि मेरा नेशनल लेवल में है. ये स्कूल लेवल में भी आजकल देखा जा रहा है, अंडर 15 अंडर 18 वाले बच्चे +2 लेवल के जो हो जाते हैं, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए समटाइम्स दे यूज टू टेक some type of medication which will be caught by the national anti doping agency, जो कि एनाबोलिक स्टेरॉइड होता है, वो कि प्रोहिबिटेड है, या फिर एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स हो जाता है, पेप्टाइड हार्मोन. वो उनको पता नहीं चलता है कि वो उस टाइम पे वो ले लेने के बाद वो ग्रोथ हार्मोन्स का इफेक्ट उनका बॉडी में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं बॉडी बनाने के लिए. तो ये सभी चीजों को हमको ध्यान में रखना है एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड कोचेस एंड स्कूल टीचर्स की वो परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए कुछ खा रहे हैं न्यूट्रिशन के अनुसार मिला के. तो वो सभी चीजें उनको दिमाग से उठाना चाहिए कि परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए ओनली प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रादर देन टेकिंग द लाइक परफॉर्मेंस इनहेंसर प्री एक्टिवेटेड जो चीजें थे उसको. तो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड लाइक कोचेस यू शुड बी इन कैच इन आई कि बच्चे का परफॉर्मेंस अगर सडनली हाइक हो गया कि वो उसका न्यूट्रिशन में कुछ लिया है कि नहीं, उनकी को हमको कैटेगराइज करना पड़ता है. ठीक है, थैंक यू. इज देयर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. किसी भी पार्टिसिपेंट को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं. सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपसे जी. वो एक एक बताना चाहूंगा. एक क्वेश्चन ओके. आया कि जब बच्चा हियरिंग लॉस के साथ है और या उसके इम्प्लांट इम्प्लांट हो रखा है तो उसके लिए कौन सा स्पोर्ट्स गेम बेस्ट रहेगा? आप लोगों के हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका विजुअल फीडबैक होना चाहिए बस. वो आप लोगों का कॉन्टैक्ट जिम से आप लोगों का खो खो खेल सकते हैं, वो कबड्डी भी खेल सकते हैं, ठीक है ना.
कबड्डी, खो खो, नेट बॉल जो है ना, वो सभी गेम्स वो खेल सकते हैं। हियरिंग एड पहनने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोग के लिए। पैरा ओलंपिक्स में वो खेल सकते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल भी वो खेल सकते हैं अगर वो फिजिकली चल रहा हो तो। अगर सिर्फ हियरिंग एड पहना है तो वो खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हेलो है। हेलो। हाँ जी बताइए। किसी बच्चे का अगर एपिलेप्सी है तो उसका क्या क्या गेम रहेगा, ठीक रहेगा? एपिलेप्सी में मैडम बेटर होगा उसका एपिलेप्सी का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम पे एपिलेप्सी हो रहा है, कि किस किस एरिया में, मतलब कितने दिन के फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, ठीक है ना। इंडोर गेम्स बेटर होगा उन लोग के लिए। अगर हो सके तो कैरम, चेस या माइंड मेंटल गेम्स जो होता है ना, वही होता है। फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप करेंगे तो उन लोग को स्विमिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा उनका। स्विमिंग, स्विमिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। स्विमिंग, स्विमिंग, ओके। स्विमिंग। स्विमिंग, हाँ हाँ। जी जी। ठीक है, ठीक। उनका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और आपका एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए स्विमिंग बेस्ट होगा। ओके सर, थैंक यू। और कोई पूछना चाहता है? सर हेलो एक सर। क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसका प्रमाण पत्र मिलता है ना? हाँ जी बिल्कुल, आपको प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। अपने ईमेल्स आप अपने सेंड कर दीजिएगा। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन है। जो बताइए। बच्चा बहुत ज्यादा मतलब हाइपर एक्टिव है, जी, उनको क्या करवा सकते हैं हम? उनको वेट ट्रेनिंग कराइएगा, घर ठीक है बैठे ना। क्या करवा सकते हैं? घर बैठे उनको देखिए, एक एक्टिविटी में एंगेज करिए विथ वेट कप्स, ठीक है ना। वेट कप्स, बॉल बॉल जंपिंग, ठीक है। हेलो। यस हाँ सर, हाँ यू आर हाँ, ऑडिबल। सुने। हाँ। वेट कप्स पैर में लगा के आप जंपिंग करा सकते हैं। ट्रैम्पोलिन में जंप कराइए, बॉल में जंप कराइए। फिर आपका बॉल प्रेशर दीजिए, जॉइंट प्रेशर दीजिए। ये इन लोग का क्या होता है ना, पोजीशन सेंस में प्रॉब्लम होता है। तो ये एडीएचडी बच्चों में आप लोगों का क्या होता है ना, वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करना का। स्विंग एक्टिविटीज उनको ऐड करिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाइएगा। एक बास्केटबॉल और नेट दीजिए जिससे कि उनका कंसंट्रेशन थ्रो करने के लिए वो कंसंट्रेशन, उनका एक एक्टिविटी में कंसंट्रेट करने के लिए नेट होता है, और बास्केटबॉल दे दीजिए उनको, बोलेगा उसमें डालने के लिए, ठीक है। जॉइंट जॉइंट क्या जॉइंट एक्टिविटी, वो क्या है? जॉइंट कंप्रेशन, जैसे आप लोग क्या जॉइंट प्रेशर? जॉइंट प्रेशर करना पड़ता है आपका। जॉइंट प्रेशर में आपका ना पोजीशन सेंस में आपका वो हाइपर एक्टिविटीज बच्चे लोगों में कम हो जाता है। बॉल जंपिंग, बॉल के ऊपर रख के उनको कूदने के लिए बोलिए, जंपिंग कराए। ट्रैम्पोलिन में जंप कराए विथ वेट कप। पैर में उनका वेट कप बांध दीजिएगा, उसके ऊपर वो जंप करने के लिए बोलिएगा उनको, ठीक है ना। ओके, हेलो। हाँ जी बताइए। समझ गए। थैंक हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हमारे पास ऑटिज्म टाइप बच्चे हैं दो तीन। जी जी वो अपने आप में ही खेलते रहते हैं और तरह तरह की आवाजें वो करते रहते हैं। जी जी उनको जी आई कांटेक्ट वगैरह नहीं करते वो ज्यादातर। वो अपने जी। आप में ही बाकी बच्चों से अलग रहते हैं। तो ऐसे हम्म। बच्चों को पास में लाकर जितना ही करना चाहो वो बैठते ही नहीं। उसके लिए क्या करना चाहिए सर? उनके लिए ना ग्रुप ग्रुप थेरेपी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा एक सर। ग्रुप में आप बिठा लिए 4-5 बच्चों के साथ, फिर उनको बॉल बॉल पासिंग वाला गेम कराइए, ठीक है। अच्छा। पहले वो ओके। बैठ के उनको बॉल एक के साथ एक, एक के बाद एक के बाद एक, वो ऑटोमेटिक ऑटिज्म बच्चे को क्या होता है ना, उन लोग को आप जैसे सिखाओगे ना वो सीखेंगे, 100% सीखेंगे। उसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी इन स्पोर्ट्स। आप लोगों अच्छा। को ओके। न्यूरोप्लास्टिक, जिसको उनका ब्रेन को हम लोग को सिखाना चाहिए। उनका दिमाग में कुछ नहीं होता, आप अगर हाँ। सिखाएंगे तो वो सीख लेंगे। तो उनको वो ओके एक्टिविटी ओके। क्रिएट करना चाहिए। बॉल पासिंग वाला एक्टिविटी हो गया, या तो फिर उनको क्लाइंबिंग वाला एक्टिविटी हो गया, सीढ़ी हाँ। ऊपर नीचे चढ़ने बने के भैया। लिए। ये ओके सभी सर। एक्टिविटीज को ऐड करिएगा। हाँ ओके सर, धन्यवाद। हाँ। जी जी, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी जी बताइए। बोलिए। सर मेरे बेटे को एडीएचडी है सर। जी उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन बहुत देर तक नहीं रहता उसका। तो जी किसी एक्टिविटी में अगर हम एंगेज करते हैं उसको तो रदर अपनी एक्टिविटी करने से ज्यादा वो दूसरों पे ध्यान देता है, इधर उधर। जी। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ओके। सर कैसे मैनेज करें, कैसे ठीक करें सर? उनका देखिए एडीएचडी बच्चों में ना ये चीज हाँ डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मगर आप घर पे क्या जी करिए, एक बॉल को हैंग कर दीजिएगा, रस्सी लगा के बॉल हैंग जी। करिए, और एक उनको बैट दीजिएगा, हाँ। ठीक है। तो बॉल स्विंग होता रहेगा, उनको बैट को मारने के लिए बोलिए, ठीक है। सो अच्छा। दैट उनका क्या होना, ठीक है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा।
समझ में आया? ओके फिर जी उसके सर। बाद आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनका कंसंट्रेशन उस पर आएगा, क्योंकि वो लगेगा कि बार बार तो उनका बॉल नहीं लगेगा, फिर वो इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, समझे? अच्छा फिर सर। उसके ओके बाद सर। बॉल को ऊपर में रख दीजिए, उनको बोलिए जंप करिए, फिर उनको बॉल को टच करने के लिए बोलिए। जितना वो जंपिंग एक्टिविटी वो करने के लिए इच्छा करेगा, एडीएचडी बच्चा में ना जंपिंग एक्टिविटीज, रोमिंग अराउंड, घूमने के लिए कोशिश करने की ज्यादा इच्छा करेगा, तो उस टाइम में उनको क्या ना बॉल को हैंड कर दीजिए, फिर उनको बोलिए खुद जी। जंप करके छूने के लिए। बार बार नहीं छू पाता होगा, फिर जब छूता होगा फिर अप्रिशिएट करना है आप उनको, अरे यार छू लिया करके ताली वगैरह मारना है। तो उसके कारण ये 2-3 ओके एक्टिविटी आपके पास, फिर उनको बियर वॉकिंग कराओ, हाथ के ऊपर चलने के लिए, आपको पैर में पकड़ लो, पैर दोनों उठा के हाथ पे चलने के लिए, ठीक है? फिर ओके। सैंड वॉकिंग अच्छा सर। कराइए। ठीक है और सर। एक ये बार हाथ पे जंप, हाथ पे क्रॉल करने वाला, और दूसरा जो है वो बॉल पे आपने बताया ना सर। दो बॉल एक्सरसाइज, क्योंकि सर बॉल थोड़ी, हाँ बॉल एंड बैट, आई बस। हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बॉल को ऊपर रख दीजिए, उनको जंप करके टच करने के लिए, ठीक है? और पार्क ले जाइए, पार्क में वो स्लाइडिंग वाला होता है ना, स्लाइडर, जी जी। हाँ उसमें भी उसको कराइएगा, वो बहुत हेल्पफुल होता है एडीएचडी बच्चे लोगों के लिए। राइट। ठीक। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो हाँ जी बताइए। सर, एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा है जो मतलब मुंह से सांस लेना है, उसको माउथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी दी गई है, परंतु वो मुंह से सांस लेने लग जाता है, नाक से सांस नहीं लेता है। तो फिर एक्सरसाइज के दौरान या खेलने के दौरान सिंपल वो उसको बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाती है और फिर पसीना आने लग जाता है, जल्दी थकान आ जाती है। बोलिए उसको कितने भी थेरेपी दे चुके हैं, पर अब क्या किया जाए ताकि वो नाक से सांस ले, मुंह से सांस हाँ, लेता है, तो इसके उसका लिए क्या उसका टंग ट्रीटमेंट? मूवमेंट कैसे है, उसका टंग मूवमेंट कैसे है उसका? हाँ, लार टपकती है, टंग मूवमेंट, थोड़ा मुंह खुला रहता है, हाँ, वो माउथ उसका ओपन रहता है। टंग, टंग मूवमेंट अगर नहीं होगा ना, तो मुंह खोल के रखेगा तो निश्वास नहीं बंद होगा। टंग अगर ऐसा रहेगा तो वो ऑटोमेटिक उसका स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो आप लोग उसका ना चिक मसल्स को एक्टिवेट कराइए, टंग मूवमेंट के एक्टिवेट कराइए, तो अगर मुंह बंद होगा तो ही वो नाक से निश्वास लेगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा वो। अच्छा, समझे सर? ठीक है। उसका टंग में, हम्म। टंग मूवमेंट में उसका प्रॉब्लम है, हम्म। तो टंग मूवमेंट ठीक। को एक्टिवेट करना बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट परंतु है। जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के दौरान तो वो टंग। जी। थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट। और किसी को भी अगर कुछ भी डिटेल्स में असेसमेंट करवाना है, सर्विसेज लेनी है, तो वो हमारे सीआरसी लखनऊ पे कभी भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एडीएचडी या ऑटिज्म से रिलेटेड या किसी भी बच्चे से जो स्पेशल बच्चे हैं उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो कभी भी हमारे सीआरसी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ किसी की और भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, उससे हम आपको रिप्लाई सेंड कर देंगे। Thank you to all participants. Thank you, Dr. P. Balakishore sir. थैंक यू। Thank you to हमारे थैंक patrons. यू सर। Thank you all of you. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Yeah, thank you, sir.